Hi everybody, hope you are doing great and welcome to a new video. आज है 22nd of July. कुछ टाइम पहले I completed my workout session. So आज का जो दिन है, it started off quite early. It started at around 6 AM. I got up at 6 AM. थोड़ा बहुत reading का काम था वो किया and I made some meals. Made my pre-workout meal. Pre-workout meal के लिए I had a peanut butter sandwich and a banana and द नॉर्मल प्री वर्कआउट एंड उसका भी मैंने बहुत कंजम्पशन जो है बहुत रिड्यूस किया है. आई जस्ट हैड अबाउट हाफ अ स्कूप बिकॉज आई वांटेड टू ट्रेन हैवी टुडे एंड उसके बाद आई लेफ्ट फॉर द जिम. बारिश हो रही थी सो आई हैड टू टेक अ रिक्शा टू द जिम. जिम में मैंने जो फुटेज निकाला है आई हैव pretty much put most of it in this video before this. मतलब it was a good training session. We did chest and shoulders and मतलब strength is pretty much maintained and trying to even increase it, even though मैंने calories of course थोड़े से reduce किए हैं as compared to the calories I was having when I was back home in Pune, which was almost the entire month of June. And of course then घर का खाना थोड़ा बहुत बाहर का खाना भी हो रहा था and that automatically gets cut off when I get back to routine and all of that stuff. So it's like कि strength कुछ हद तक maintain हो रही है and plus जो knee injury है अभी काफ़ी हद तक better and almost completely recover हो गया हूँ मैं and I think it will still take about 3 to 4 weeks for like 100% recovery, but in order to speed that recovery, in order to make that recovery fast and to speed up the process, I have been training legs. पहले मैं मतलब leg extension and line leg curl machine and calf raises करता था and most of the movements I would do would be individual legs and उसके अलावा I was like doing little bit of walking etc. So I have not been going on my normal jogs क्योंकि जब मैंने एक बार jogging करने की कोशिश की few days back, so it was like थोड़ा सा अभी भी आई फेल्ट कि द लेग थोड़ा सा मतलब वो नी थोड़ा ऐसा लूज़ लग रहा था व्हेन आई वाज जॉगिंग. सो आई थॉट कि आई विल गिव इट कंप्लीट रेस्ट एंड रिकवर एंड देन ओनली आई विल स्टार्ट डूइंग माय कार्डियो. तो उसके वजह से वही है कि थोड़ा सा फैट परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ गया है. मतलब देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ एक्चुअली. आई वाज जस्ट बीइंग अ बिट लेजी एंड काइंड ऑफ टेकिंग इट a bit easy and just training, doing weight training. So yeah, and थोड़ा सा काम भी हो गया था and वो सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा रूटीन सेट नहीं हो रहा था. So now I'll pretty much go back to the routine which like it was, that is normal walking every day for about half an hour 45 minutes. Almost 10,000 steps हो जाते हैं, around 8,000 होते हैं actually, but मैंने डिसाइड किया कि मैं ये स्टेप काउंट जो है उसके हिसाब से नहीं जाऊँगा. आई विल जस्ट डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन द डे. आई विल स्टार्ट विथ लाइक 30 minutes ऑफ वॉकिंग. वी विल गो ऑन टू देन 30 minutes ऑफ वॉकिंग प्लस लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग ना. तो मैक्स टू मैक्स 30 minutes ट्वाइस अ डे. दैट विल ऑल्सो बी क्वाइट लेटर आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स. अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट एमिंग एट 30 to 45 minutes ऑफ वॉकिंग पर डे. उसमें थोड़ा बहुत जॉगिंग हो गया तो ग्रेट, even though the weather is not that supportive to go on a jog, but let's see.
द वेट ट्रेनिंग जो स्केड्यूल है या जो प्रोग्राम है, मतलब आई एम स्टिल फॉलोइंग अ 4 day स्प्लिट, एंड उसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट हाउ आई विल बी गोइंग अबाउट माई ट्रेनिंग. बेसिकली इट्स लाइक आई विल बी डूइंग अ 4 day स्प्लिट. उसको थोड़ा और मतलब डिटेल में मैंने ब्रेक किया है. सो लाइक जैसे हम लेग्स करते हैं फर्स्ट डे पे, देन वी डू चेस्ट एंड शोल्डर्स, देन बैक एंड देन आर्म्स. सो one period of 4 days will include, like the leg day will include quad focused leg day होगा वो, and push day will be chest focused, then back will be lat focused, then arm day होगा bicep focused, and then बाकी के जो भी parts like hamstring focused leg day एक दिन होगा, एक दिन shoulder focused push day, एक दिन tricep focused arm, एक दिन rowing focused back. So ऐसे करके almost it's a 4 day split which will be put into 8 days and maybe 1 day gap in between, and when we complete the whole this thing, another I'll take a 1 day rest day or 2 day rest day. वो देखते हैं. Diet, like also I wasn't dieting, so I wasn't dieting इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा रहा था. थोड़ा बहुत कचरा खाना था, no doubt, बाहर का खाना था, but it was still overall 80% of my diet was clean diet. It was good home cooked food. थोड़े से कार्ब ज़्यादा हो सकते हैं, बट आई मेड श्योर कि मेरे हर मील में मुझे अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फिश. या आई मीन लाइक, तो डाइट वॉज क्लीन, बट ऑफकोर्स जस्ट ईटिंग क्लीन डजंट हेल्प. You have to control your calories. If you want to be in a deficit, you have to even calculate them and control them. And yeah, so that's what we are doing. But अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा अंदाज़े से कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलोरीज. थोड़ा बहुत ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं कर रहा हूँ. But probably from today we'll start tracking our calories. पहले मैं सोच रहा था कि कार्ब्स को पूरी तरीके से कट आउट करूँ ये वो. सो वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. मतलब वो सब मैंने किया है. थोड़ा क्या वाटर वेट ही चले जाता है, बट कार्ब्स आर नॉट योर एनिमी. वी विल बी रिड्यूसिंग कार्ब्स स्लोली एंड स्टेडीली, एंड कीपिंग द राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स इन द डाइट, ताकि वो फ्यूल मिले मुझे वर्कआउट के लिए. एंड प्रोटीन इज़ 2 grams per kg body weight. फैट इज़ 1 to 1.5 grams per kg body weight as of now, क्योंकि कैलोरीज थोड़े हाई रखा हूँ. एंड या एंड द रेस्ट आई एम फिलिंग इट अप विद कार्ब्स. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग. अभी थोड़े हफ्ते मेंटेनेंस पे खा रहा था. आने के बाद, उसके बाद अ कपल ऑफ वीक्स आई ड्रॉप द कैलोरीज, एंड या एंड इट्स लाइक गोइंग प्रीटी वेल. वेट थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, स्लोली ड्रॉप हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग. I'm feeling lighter, no doubt, and let's see, धीरे धीरे और calories drop करेंगे. That's pretty much about it. So that's all for today. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, stay safe and stay strong.